اسلام کا غیرت موجود اور شفاعت رسول اللہ کا مجمع دور و نزدیک سے سماعت کرنے والی پردہ نشین خواتین بیس مذہب خلقاتی کا نظام خاتمہ نمبر 2 اوپر کے ذریعے پر ادبی کتاب کی صورت میں جلوگر علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و زیبا جس نے کل کائنات کی تخلیق فرمائی۔ درود و سلام اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و زیبا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی تخلیق فرمائی۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ادب و احترام کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ خاطر کرتے ہوئے جن حضرات کو جو درود شریف یاد ہے ایک بار آواز بلند کر کے اللہم صلی سیدنا حبیبنا محترم حضرات، مجھ سے قبل آپ حضرات نے بہت اچھی گفتگو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور اس سے بھی پہلے مداح خیر الانام بلبل باب مدینہ حضرت مرحوم صاحب قبلہ کی نعت خوانی سے آپ حضرات نے اپنے عقیدوں کے مینار کو بلند، عظمتوں کے چراغ کو روشن اور منور کیا، اور میرے بعد بھی ان علماء کرام کی خوبصورت باتیں آپ حضرات سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ علماء کرام دیکھنے کی بھی چیز ہے اور سننے کی بھی چیز ہے۔ فضائل درود سے حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب قبلہ نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام درود طلبی ہے۔ درود طلبی کے رائٹر نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب رب کے حضور تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنے نبی سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، میرے نبی بتا زمین کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پروردگار یہ زمین تیری ہے، اس کا تو مالک ہے۔ دوسرا سوال،
میرے نبی بتا تو کس کے لیے ہے، تیرا مالک کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیرے لیے ہوں اور میرا بھی مالک تو ہے۔ تیسرا اور آخری سوال میرے نبی بتا میں کس کے لیے ہوں؟ تو 3 سوال ہوا۔ پہلا سوال نبی بتا زمین کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ دوسرا سوال میرے نبی بتا تو کس کے لیے ہے، تیرا مالک کون ہے؟ تیسرا سوال میرے نبی بتا میں کس کے لیے ہوں؟ تو پہلے سوال کا جواب دیا پروردگار یہ زمین تیری ہے، اس کا تو مالک ہے۔ دوسرا جواب پروردگار میں بھی تیرے لیے ہوں، میرا بھی تو مالک ہے۔ تیسرا سوال کہ میرے نبی بتا میں کس کے لیے ہوں؟ تو صاحب درود القلبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیا سے محسوس ہوئی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا، جو تجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ تو آئیے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو پروگرام شروع بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی میں یہاں آ کر کے بیٹھا ہوں۔ ایسے عالم کی ضرورت ہے، رکھیے ایسے عالم کو، سنبھالیے اور ایسے عالم کے ساتھ دیجیے۔ تو میں بہت شروع سے یہاں ہوں، مولانا رضوان صاحب کی بلا تو بعد میں آئے ہیں۔ مولانا سرفراز مصباحی صاحب کی بلا کے روم میں بہت ساری کتابیں بھی ہیں، آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہو تو یہ کتاب کھولتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ جب میں یہاں آیا خانقاہ تاج الشریعہ میں، اور میں نے یہاں دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا نوری صاحب قبلہ یہ خانقاہ ہے، یہاں کوئی کتاب نہیں۔ ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں، مولانا رضوان قادری صاحب کے پاس بھی کتابیں ہیں۔ جب میں یہاں اس خانقاہ میں آیا، خانقاہ تاج الشریعہ میں، تو یہاں کوئی کتاب نہیں۔ میں نے مولانا رضوان صاحب سے ابھی یہ باتیں میں نے شیئر کی کہ مولانا صاحب یہاں تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو مولانا رضوان صاحب نے جواب دیا کہ سرفراز مصباحی کے پاس چلے جاؤ، وہاں کوئی مسئلہ پوچھو تو کتابیں کھولو اور پھر دیکھو۔ اور یہ خانقاہ تاج الشریعہ ہے، یہاں کا مزاج الگ ہے، کتابیں بند کرو پھر دیکھو، کتابیں بند کرو پھر دیکھو۔ بہت اچھی بات، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے۔ اب مولانا رضوان صاحب وہ شعر مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو پھر یہاں پڑھایا نہیں جاتا ہے، یہاں پردہ ہٹا کے دکھایا جاتا ہے۔ تو ایسے خانقاہ میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، نام بھی بڑا لاجواب ہے اور نہ اس ذات کا کوئی جواب، خانقاہ تاج الشریعہ۔ تو اس عظیم الشان خانقاہ میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حضرات محبتوں کے ساتھ علماء اکرام کی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نعیم نگر کوئی چھوٹی بستی ہے نہیں، بہت بڑی بستی ہے، اور آج یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام روزانہ ہوا کرتا ہے، کہیں بزنس کی بات ہوتی ہے، کہیں پالیٹکس کی بات ہوتی ہے، ویاپار کی بات ہوتی ہے، کاروبار کی بات ہوتی ہے، لیکن تنہا یہ پروگرام ہے جہاں جنت کی بات ہوتی ہے،
जन्नत की बात होती है, आखिरत की बात होती है। तो आप हजरात जन्नती रूहानी स्पिरिचुअल महफिल में बैठने का शरफ हासिल करते हैं, इसलिए अदब व एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए आप हजरात यहाँ बैठे। और एक जुमला और मैं कह दूं, खानकाह ताजुश्शरिया में मैं खड़ा हूँ और इस खानकाह अज़ीम शान खानकाह के सज्जादा नशीं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा नूरी साहब किबला, मैंने कहा कि इस खानकाह में कोई किताब नहीं है, तो मौलाना रिजवान साहब ने जवाब दिया कि खानकाह में पढ़ाया नहीं जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। तो आज आप हज़रात इस खानकाह में बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा था कि प्रोग्राम्स रोजाना हुआ करते हैं और ये इतनी बड़ी बस्ती है, अगर यहां नाचने और गाने का प्रोग्राम होता इसके अगल बगल में कहीं, तो इतनी भीड़ हो जाती कि लोग अपने पैर पे खड़े हो करके देखते। लेकिन ये ज़िक्र मुस्तफा है। देखें कि मुट्ठी भर लोग यहां बैठे हुए हैं। सूफिया इकराम फरमाते हैं, मौलाना रिजवान साहब और मुफ्ती साहब की मौजूदगी में, कि अल्लाह के नबी का जिक्र जब हो और कोई न सुनने लगे तो छोड़ दो, बंद कर दो और जाओ दरख्त के सामने मुस्तफा का जिक्र करो। कोई नहीं सुनेगा, दरख्त के पत्ते मुस्तफा का जिक्र सुना करें। और जब कोई मुस्तफा का जिक्र ना सुनने लगे, छोड़ दो, बंद कर दो, जाओ समंदर के किनारे मुस्तफा का जिक्र करो। कोई नहीं सुनेगा, समंदर की मछलियां मुस्तफा का जिक्र सुना करें। तो ये इतनी बड़ी बस्ती है और इस खानकाह में आप हजरात बैठे हुए हैं। खानकाह से जुड़िए आप हजरात। यहां से ईमान की हिफाजत के फॉर्मूले अदा किए जाते हैं। हमने अपना आइडियल और मॉडल उसे बना रखा है। यही वजह है मौलाना रिजवान साहब की बिला कि हमारे कौम के बच्चों को एक एक बच्चा को एक एक दर्जन गाना याद है। नहीं याद है तो मुस्तफा का एक कलमा एक एक बच्चा को एक एक दर्जन गाना याद है। कौन हीरो किस फिल्म में काम कर रहा है, उसकी एक्टिंग क्या है, कौन हीरोइन किस फिल्म में है, उसकी एक्टिंग क्या है, ये हमारी कौम की बच्चियां जानती है कि कौन सा सीरियल किस टाइम में आता है। लेकिन मुस्तफा की जिंदगी मेरे कौम के बच्चों को याद नहीं है, मुस्तफा का तरीका मेरे बच्चों को याद नहीं है, एक कलमा मेरे बच्चों को याद नहीं है। बहुत बड़ी ये बात है, इसको हल्के में मत लीजिए, आप सोचिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। और अल्लाह, मैंने खुतबा मुसन्ना के बाद जिस आयत करीमा को मैंने मौजूद सुखन बनाया है, ये दौर जो है, ये दौर विज्ञान है, ये दौर साइंस है। इस दौर में जो मजहब हकीकत की कसौटी पे खरा ना उतरे, वो मजहब गोशाई गुमनामी में चला गया है। लेकिन रिसर्च के बाद आज वैज्ञानिक ने साबित कर दिया है कि मजहब इस्लाम जैसा हकीकी मजहब कोई नहीं और मुस्तफा जैसा रहनुमा इस पूरे जमीन पर, मुस्तफा जैसा रहनुमा इस पूरे जमीन पर कोई नहीं। तो आप 4 मिसरे समाप्त करेंगे मुझसे, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज। और मुफ्ती साहब की बिला के हुक्म की तामील में मैं जितनी देर गुफ्तगू का हुक्म है उतनी ही देर बैठूंगा। बंगला तकरीर आपने की, बहुत अच्छी तकरीर की, बस फर्क ये है कि मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं बिहारी हूं तो बंगला समझता नहीं हूं। और ऐसी अच्छी तकरीर हुई आपके जरा। 4 मिसरे समाप्त करें। अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं। मैं खानकाह ताजुश्शरिया में पढ़ रहा हूं। अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं। अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं। टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। और अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। मुश्ताके दीद होकर जलवा किसी ने मांगा। औलादे फातिमा का सदका किसी ने मांगा।
मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। तो ये दौर साइंस है। इस दौर में जो मजहब हकीकत के कसौटी पे खरा ना उतरे वो मजहब गोशे गुमनामी में चला गया है। मगर वैज्ञानिक ने रिसर्च के बाद ये साबित कर दिया कि मजहब इस्लाम जैसा हकीकी मजहब कोई नहीं है और मुस्तफा जैसा इस रुए जमीन पर रहनुमा कोई नहीं। हमने उलमा इकराम से बहुत सुना है कि मुस्तफा की उंगली उठी चांद दो टुकड़ा हो गया। हमने बहुत सुना है कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम को दरख्तों ने जानवरों ने सजदा किया। हमने खूब सुना है कि मुस्तफा की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा। ये सारी बातें सच है, लेकिन हम उन लोगों को कैसे समझाएं जो लोग कलमा नहीं पढ़ता है, जो मुसलमान नहीं है, उन लोगों को हम कैसे बताएं? वो तो कहेगा कि तुम कलमा पढ़ता है, तुम कह सकता है कि मुस्तफा की उंगली उठी चांद दो टुकड़ा हो गया। वो कहेगा कि तुम कलमा पढ़ता है, तुम कह सकता है कि मुस्तफा को दरख्तों ने जानवरों ने सजदा किया। तुम कलमा पढ़ता है, तुम कह सकता है कि मुस्तफा की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा। मैं कैसे मान लूं? मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं तेरी बात कैसे मान लूं? ये दौर विज्ञान है, ये दौर साइंस है। इस दौर में जो मजहब हकीकत के कसौटी पे खरा ना उतरे वो मजहब गोशे गुमनामी में चला गया है। इसलिए मैंने आज के इस नशिस्त में और खानकाह ताजुशरिया में इस मौजू का मैंने इंतखाब किया कि आज एक किताब लिखी गई अमेरिका में 1978 में किताब लिखी गई। किताब का नाम है द 100। आप यूट्यूब पे जाएंगे, किताब को आप सर्च करेंगे, वो किताबें दस्तयाब हो जाएगी, या बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की दुकानों में कुतुब खाने में ये किताबें मिल रही है, ये किताब मिल रही है। तो किताब का नाम द 100, लिखने वाले का नाम माइकल हार्ट, रहने वाला अमेरिका के रहने वाले माइकल हार्ट। ये माइकल हार्ट अपने दौर का बहुत बड़ा लॉयर, बहुत बड़ा एडवोकेट, बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत बड़ा वैज्ञानिक का नाम माइकल हार्ट है। माइकल हार्ट ने किताब लिखी द 100। उस किताब में उन्होंने सोचा कि दुनिया के करोड़ों लोगों में से 100 महानतम लोगों की सूची में तैयार करो जिन्होंने अपना असर जिंदगी के सारे डिपार्ट में छोड़ा हो, यानी एक किराए में रहने वाला हो या महल में रहने वाला, हल जोतने वाला हो या मुलाजमत करने वाला, मैदान जंग के दस्तूर हो या सुलह के टेबल पर बैठकर सुलह करने के मसाइल, जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, जिन्होंने हमें योगदान दिया हो, हमें गाइडलाइंस दिया हो, दस्तूर जिंदगी दिया हो, दस्तूर हयात दिया हो, ऐसा कौन शख्स हो सकता है? माइकल हार्ट ने कई साल तक इतिहास को खंगाला और दुनिया की सारी तारीखों को आंखों की खुजलियों में समेट लिया। माइकल हार्ट की निगाह में माज़े तुम भी था, जिन्होंने चाइना के विकास में अहम रोल अदा किया। माइकल हार्ट की निगाह में अब्राहम लिंकन भी था, जिन्होंने अमेरिका में डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है, अवाम के जरिए है। माइकल हार्ट की निगाह में हिंदुस्तान का गांधी और अंबेडकर भी था। लेकिन सवाल यह था कि सबसे पहले अपनी किताब द 100 में किसका नाम लिखा जाए, जिन्होंने अपना योगदान ऐसा दिया हो कि जिंदगी के सारे डिपार्टमेंट को जिन्होंने रोशन करके रख दिया हो। ऐसा कौन शख्स हो सकता है? क्या गांधी और अंबेडकर हो सकता है, या तो गौतम बुद्ध हो सकता है, या महावीर हो सकता है, या रामकृष्ण हो सकता है, या अब्राहम लिंकन हो सकता है? ऐसा दुनिया में कौन हो सकता है? माइकल हार्ट ने कई साल तक इतिहास को खंगालकर, मालूमात के समंदर में गोता लगाकर हकीकत का पता लगाया, और आखिर में माइकल हार्ट ने ये बोला कि इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी alone is the Muhammad Mustafa who is the most successful person on a religious and political level. माइकल हार्ट कहता है कि तारीख इंसानियत का तन्हा इंसान मोहम्मद मुस्तफा है, जो सियासी और मजहबी सतह पर सबसे ज्यादा महान है, सबसे ज्यादा महान है। अब ऐसा नहीं है कि ये किताब अमेरिका में 1978 में छपी और 1978 ही में खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आज भी ये किताब बड़ी बड़ी किताब कुतुब खाने में आज भी ये किताब मिल रही है। चंद लोगों ने एतराज किया कि माइकल हार्ट जैसा पढ़ा लिखा आदमी, दानिश्वर आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, इतना बड़ा प्रोफेसर, उसने वो मजहबन क्रिश्चियन है तो उन्हें चाहिए था कि ईसा का नाम लिखते, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा का नाम क्यों लिखा? वो वैज्ञानिक है तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन है, उन्हें चाहिए था कि न्यूटन का नाम लिखते, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा का नाम क्यों लिखा? लोगों ने एतराज किया।
माइकल हार्ट ने इस एतराज का पलट कर जवाब दिया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माय रिसर्च देन यू गिव मी अ क्लियर प्रूफ। माइकल हार्ट कहता है कि तुम मेरी इस तहकीक से मुतमईन नहीं हो तो तुम मुझे ये दलील पेश करो कि मोहम्मद मुस्तफा से कोई बड़ा हो सकता है। मैं अपना सिलेक्शन चेंज कर दूंगा, मैं अपनी तहकीक चेंज कर दूंगा। आज से तकरीबन 35 साल गुजर गए, आज तक किसी ने माइकल हार्ट के इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। और जवाब देगा कैसे? जिसका जिक्र खुदा बुलंद करे उसके जिक्र को कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, उसके जिक्र को कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। अल्लाह ने फरमाया वरफअना लका जिक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, और जिसका जिक्र खुदा बुलंद करे उसके जिक्र को कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। ये तो एक बुनियादी बात थी, ये बुनियादी ईंटें थी जो मैंने आप हजरात के हवाले कर दिया। अब यहाँ से कुछ कदम अगर आप हजरात मेरे साथ चलना चाहें तो एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा हुए, कोई कर्नल बना, कोई जनरल बना, बहुत सारे लोग दुनिया में पैदा हुए, लेकिन वक्त नहीं है एक बात में आपके सेवा में, उसके बाद गुफ्तगू के इस दफ्तर को क्लोज करूंगा, कुफ्र लगाऊंगा इसमें। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो मक्के में हलचल, नबी के कैरेक्टर पे और नबी के चाल चलन पे हलचल नहीं, ऐलान पे हलचल। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं नहीं, वो दूसरे मुल्क गए हुए बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए। जब नबी ने ऐलान किया तो मक्के के लोगों ने काफी कुछ कहा, जो कहना था कहा, और जो बोलना था बोला, जो करना था किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं नहीं, कई रोज के बाद आए, और जब अबू बकर सिद्दीक आए तो मुलाकात हो गई अबू जहल से। अबू जहल ने कहा कि सिद्दीक तुझे मालूम है कि तेरे दोस्त ने नबूवत का ऐलान कर दिया है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बाद में बात होगी, अभी मैं सफर से आया हूं थका हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने, ये ईमान से पहले की बात था, अबू बकर सिद्दीक ने अपने सवारी को अपने दरवाजे पे रखा और डायरेक्ट नबी मुहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर तशरीफ ले गए। घर गए और वहां जाने के बाद पूछा, दरवाजे पे दस्तक दिया कि मेरे दोस्त कहां है। तो घर में कहा कि मक्के के लोगों ने बहुत तकलीफें पहुंचाई है, इसलिए अपने टूटे दिल को लेकर के, ये टूटा दिल मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मुहावरे का एक लफ्ज है, और टूटा दिल गम के इजहार के लिए कहा जाता है। तो अपने टूटे दिल को लेकर के सामने के पहाड़ी पे वो गए हैं और वहीं वो बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उस पहाड़ी पे आए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त जब बैठे थे तो पत्थर से टेक लगा करके, यानी पीठ को पत्थर से सटा करके और पैर को पश्चिम की तरफ करके बैठे थे। उस वक्त पश्चिम की तरफ करके बैठे थे, उस वक्त पश्चिम ही था, किबला नहीं था, पश्चिम की तरफ पैर करके बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और अबू बकर सिद्दीक ने देखा, एक नजर आसमान के सूरज को देखा, एक नजर मुस्तफा के तलवे को देखा, फिर आसमान के सूरज को देखा, फिर मुस्तफा के तलवे को देखा, फिर आसमान के सूरज को देखा, फिर मुस्तफा के तलवे को देखा, और आखिर में अबू बकर सिद्दीक ने फैसला कर लिया कि अबू बकर सिद्दीक, ये मुस्तफा का जो तलवा चमक रहा है, ऐ सूरज तेरे चमकने से मुस्तफा का तलवा नहीं चमक रहा है, मुस्तफा का तलवा चमकने से तेरा चेहरा चमक रहा है। ऐ सूरज तेरे चमकने से मुस्तफा का तलवा नहीं चमक रहा है, मुस्तफा का तलवा चमकने से तेरा चेहरा चमक रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक करीब आए और एक जुमला और सुन लें आप, और इसी जुमले को आप याद रख लें पूरे प्रोग्राम के लिए, बस यही जुमला काफी है। और ये खानकाह ताजुश शरिया से अब खुसूसी तौर पर यही पैगाम है। जुमला सुने कि हजरत अबू बकर सिद्दीक करीब आए, करीब आए, करीब आए और करीब आए। और जब अबू बकर सिद्दीक करीब आए
تو مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور حضرت غور کیجئے، ابو بکر صدیق جب قریب آئے تو نبی کھڑے ہو گئے. اور یہی سے مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ سمجھ لیں، جب امتی کے لیے نبی کھڑے ہو سکتے ہیں تو نبی کے لیے امتی کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نوجوانان اہل سنت زندہ باد. بہت بڑھیا. ابو بکر صدیق قریب آئے، مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو گئے. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ جب امتی کے لیے نبی کھڑے ہو رہے ہیں تو نبی کے لیے امتی کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور یہی آپ یاد رکھ لیں کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم صلاۃ و سلام عقیدت سے پڑھا کرتے ہیں، محبت سے پڑھا کرتے ہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ کیا کریں، عقیدت سے، محبت سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں درود اور سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے رہیں. اور آگے چلیں، ایک دو قدم اور آگے چلیں. تو نبی کھڑے ہو گئے اور نبی نے اپنا نبوت والا ہاتھ ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ رکھ دیا. اور جب کاندھے پہ رکھ دیا تو ابو بکر صدیق کانپنے لگے نبوت کے جلال سے. دوسرا ہاتھ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ رکھا اور سینے سے قریب کیا. ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے سٹایا. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کا کفر دھیرے دھیرے دھلتا چلا گیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق اب کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق مکے کے لوگوں نے بہت مجھے ستایا ہے، بہت ستایا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا خدا مجھے ہجرت کا حکم دے گا، یہاں سے دوسری جگہ جانے کا حکم دے گا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب بھی خدا ہجرت کا حکم دے گا تو مجھے بھی آپ ساتھ لے چلیے گا. جب بھی حکم دے گا مجھے بھی ساتھ لے چلیے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق فکر نہ کر، تو دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے، قبر میں بھی میرا ساتھی ہے، اور حشر میں بھی میرا ساتھی رہے گا. فکر نہ کر، جب بھی خدا کا حکم آئے گا مصطفیٰ سب سے پہلے تیرے دروازے پہ آئے گا. جب بھی ہجرت کا حکم مجھے خدا دے گا مصطفیٰ سب سے پہلے تیرے دروازے پہ آئے گا. 1 سال گزر گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 2 سال گزر گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 3 سال گزر گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 4 سال گزر گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال گزر گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 11 سال گزر گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا. 12 سال گزر گئے، حکم نہیں آیا. جب 13 سال گزرے تب ہجرت کا حکم آیا. نبوت نے ولایت کو اپنے بستر پہ سلایا اور اپنے روم سے نکلے. پیروں کی آواز نہیں ہونے دیا، کپڑوں کی سنسناہٹ نہیں ہونے دیا، آواز اور قدم کو مدھم رکھا اور ڈائریکٹ اپنے حجرے سے نکل کر ابو بکر صدیق کے دروازے پہ مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا. اور جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ قدم رکھا، رات کے پچھلے پر ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا ہے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، میں نے پیروں کی آواز نہیں ہونے دیا، کپڑوں کی سنسناہٹ نہیں ہونے دیا، میں نے آواز نہیں دیا کہ ابو بکر صدیق دروازہ کھولو. ابو بکر صدیق تجھے کیسے معلوم کہ تیرا مصطفیٰ تیرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ 13 سال پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا ہجرت کا حکم آئے گا سب سے پہلے مصطفیٰ تیرے دروازے پہ آئے گا. یا رسول اللہ علیہ السلام 13 سال گزر گئے، آج تک ابو بکر صدیق سویا ہی نہیں ہے کہ کب میرا مصطفیٰ میرے دروازے پہ آ جائے. 13 سال گزر گئے، آج تک ابو بکر صدیق سویا ہی نہیں ہے کہ کب میرا مصطفیٰ میرے دروازے پہ آ جائے. اللہ اللہ اللہ، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت. تو اس طرح محبت کریں اپنے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام. وقت ہو گیا نا، وقت ہو گیا. اللہ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم اپنے ایمان کو ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نا کہ یہ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کا
शुक्र है कि उसने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत से सरफराज कराई। ये दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भारत के वजीर आजम के सीने में नहीं रखा। ये दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंगाल के चीफ मिनिस्टर के सीने में नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दौलत हमारे और आपके सीने में रखा। टूटी हुई चटाई पे जिंदगी गुजारने वालों को ये अता फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अगर ईमान की हिफाजत हो जिसके अंदर और वो करते हो इसकी हिफाजत, तो आप समझें कि इस दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बिल गेट्स है। बिल गेट्स के पास खरबों डॉलर की संपत्ति है। $1 हिंदुस्तान की करेंसी के हिसाब से 65 या 70 रुपए के बराबर है। अब वो बिल गेट्स आपके इस नई नगर में आकर के वो कहे, ऐसे शख्स के पास आए जो रिक्शा चलाता हो, रोजाना 100 रुपए कमाता हो, किराए के मकान पे रहता हो, कपड़ों में 50 पेबंद लगा हो, पैरों में चप्पल नहीं, चप्पल टूटी हुई है, लेकिन वो बिल गेट्स ऐसे रिक्शा चालक के पास आकर के कहेगा, ऐ रिक्शा चालक, रोजाना तुम 100 रुपए कमाता है, ऐसा कर ईमान की दौलत तू हमको दे दे, मैं खरबों डॉलर तुमको दे देता हूं। तो वो रिक्शा चालक जिसके सीने की तिजोरी में ईमान हिफाजत के साथ है, वो रिक्शा चालक कहेगा कि बिल गेट्स जी, खरबों डॉलर की संपत्ति एक तरफ, दुनिया का सारा पहाड़ गोल्ड में तब्दील हो जाए, और कोई मुझसे कहे कि दुनिया का सारा सोने का पहाड़ तुम ले लो, ईमान की दौलत हमको दे दो, तो मैं दुनिया के तमाम सोने के पहाड़ पे थूक दूंगा, ईमान से समझौता नहीं करूंगा, ईमान से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ये ईमान की दौलत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके सीने में रखी है। ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत की हिफाजत करें, उलमा इकराम के करीब आने की कोशिश करें, उलमा इकराम से जुड़ने की कोशिश करें, उलमा इकराम से मोहब्बत करने की कोशिश करें। और ये खानकाह ताजुश शरिया है। इस खानकाह के संचालक पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, ये बहुत अच्छे आलिम हैं, बहुत काबिल आलिम हैं। ऐसे आदमी से जुड़ करके रहने की कोशिश करें। ये लोग ताजमहल नहीं बना सकते हैं, लेकिन शख्सियत जरूर बनाते हैं। आदमी को आदमी जरूर ये आदमी बनाते हैं। तो ताजमहल बनाना बहुत आसान है, लेकिन शख्सियत बनाना बहुत मुश्किल है। एक साहब ने कहा था, मुफ्ती साहब, कि छू लिया है किसी फनकार के हाथों ने वरना, गौर करें एक जुमले पे आप, छू लिया है किसी फनकार के हाथों ने वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। अब आप एक जुमला सुने कि फनकार छूले तो ताजमहल हो जाए, फनकार छूले तो ताजमहल हो जाए, और नबियों का सरदार छूले तो अबू कहाफा का बेटा सिद्दीक़ अकबर हो जाए, अबू कहाफा का बेटा सिद्दीक़ अकबर हो जाए। तो ताजमहल बनाना बहुत आसान है, शख्सियत बनाना बहुत मुश्किल है, आदमी को आदमी बनाना बहुत मुश्किल है, इंसान को इंसानियत का लिबादा अता करना बहुत मुश्किल है। और ये ऐसे लोग हैं कि आदमी को आदमी बनाने की कोशिश करते हैं, इंसान को इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोगों, ऐसे लोगों से जुड़े रहने की कोशिश करो। अगर भलाई चाहते हो दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई चाहते हो, तो ऐसे लोगों से जुड़े रहने की कोशिश करो। इसी में भलाई है और इसी में बेहतर है हम लोगों के लिए कि ऐसे लोगों से जुड़े रहने की कोशिशें और सादतें हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है, जिस मौजू का इंतखाब मैंने किया और जिस मौजू पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, मैंने तिलावत की थी वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। इस मौजू को मैंने टच नहीं किया, इस पे बात नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह रहमान इस मौजू पे कभी बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने सिर्फ ये बुनियादी ईंटें आप हज़रात के हवाले की, इस पे गौर करने, गौर तदब्बुर करने की कोशिश करें। और ये मौजू, जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया, इस मौजू पर फिर इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू करने का शरफ हासिल करेंगे। आप भी होंगे, हम भी होंगे, तो इसी मौजू पे बातें करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा और मसलक आला हज़रत को मजबूती के साथ थामे रहने की तौफीक अता फरमा, उलमा इकराम के करीब रहने की तौफीक अता फरमा और उलमा इकराम से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।